वायरल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। बैक्टीरियल, वायरल, इनके कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स मैंने लास्ट क्लास में बताए थे। तो फॉलिकल्स, पैपिले, इन वर्ड्स के मीनिंग्स याद है? ठीक, किसी को भी कुछ बोलना चाहेगा? पैपिले क्या होते हैं? फॉलिकल्स, ठीक है। वायरल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। बेसिकली कंजक्टिवाइटिस का मेन क्या क्या रोल थे? बैक्टीरियल, वायरल, और बोलोगे आगे क्या क्या होते हैं? अदर कंजक्टिवाइटिस किसी को भी याद नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन। चलो, वायरल कंजक्टिवाइटिस। If the cornea and conjunctiva both are involved, this condition is known as keratoconjunctivitis. साइलेंटली सुन लो, ठीक है। थोड़ा सा देर का क्लास है, बट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तुम्हारे लेवल पे क्वेश्चन इसी पे से पूछा जाएगा, इससे आगे नहीं, ठीक है। तो वायरल इन्फेक्शन ऑफ द कंजक्टिवा मोस्ट कॉमनली इज एडिनोवायरल, अदर आर herpes simplex, zoster, pox virus, mixo, paramyxo and एबोल। Now clinical presentation, it could be acute serous, बातें मत करो, acute serous, acute hemorrhagic and acute follicular. What is acute serous conjunctivitis? It's a mild grade of viral infection. They have minimal degree of congestion. What would be the discharge? It would be watery discharge. It not be a sticky or a pus-filled discharge. Okay? Acute hemorrhagic conjunctivitis, there would be multiple conjunctival hemorrhages, conjunctival hyperemia and follicular hyperplasia. Most commonly इसका जो etiology है, इस वायरस का नाम याद रखना है, एंटेरोवायरस टाइप 70, that is of the पिकॉर्ना वायरस, ठीक है। Clinical picture, 1 to 2 days incubation period, pain, redness, watering, photophobia, ठीक है। And signs क्या होंगे हर कंजक्टिवाइटिस में? कंजेशन, ठीक है। कीमोसिस, व्हाट इज कीमोसिस? कीमोसिस क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ द कंजक्टिवा। मल्टीपल हेमरेजेस मिल सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपके क्या इसमें फॉर्मेशन होते हैं? पैपिले। एंड व्हाट आर पैपिले? फॉलिकल्स, aggregation of lymphocytes, and papillae, dilated blood vessels, ठीक है। So mild multiple hemorrhages मिलेंगे बल्बर कंजक्टिवा में, lid edema and preauricular lymphadenopathy. These are also sign of viral conjunctivitis. Treatment again self-limiting. All viral are self-limiting. Until and unless secondary infection is there, you can add broad spectrum antibiotics, ठीक है। Then is the follicular conjunctivitis. Follicular नाम से समझ में आ रहा है? Follicular reaction would be there. There would be presence of follicles. And what are follicles? Aggregation of lymphocytes. So formation of follicles with conjunctival hyperemia. Hyperemia is congestion, ठीक है, with discharge from the eyes, ठीक है। And there would be localized aggregation of lymphocytes. Acute follicular, chronic follicular and specific type of conjunctivitis with follicle formation, it is trachoma. Trachoma is very important. Elimination की स्टेज पे कि रेडिकेशन की स्टेज पे ट्रेकोमा? अब एक बड़ा टॉपिक है ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. व्हाई? बिकॉज एट द PHC level, wherever you are working as an ophthalmologist, you have to differentiate ophthalmia neonatorum from different type of conjunctivitis, because it could be, if not treated correctly, it could be dangerous to the eye for the infant, ठीक है। It's a bilateral inflammation of the conjunctiva occurring in infant. Infant is less than 30 days old. Any discharge or even watering from the eye in the first week of life, you should suspect towards ophthalmia neonatorum. Why? Why watering? Because less than 7 days में tears form नहीं होते. Tears form नहीं हो रहे, फिर भी tearing हो रही है. Then we should think of other conditions, and one of the most common is ophthalmia neonatorum.
ठीक है। सोर्स क्या हो सकता है? बिफोर बर्थ, दैट इज इन्फेक्टेड लिकर एमनाइज रप्चर्ड मेम्ब्रेन के थ्रू उसके आईज में इन्फ्लेमेशन कर रहा है। ड्यूरिंग बर्थ, इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल से। आफ्टर बर्थ, ड्यूरिंग द फर्स्ट बाथ, ठीक है। एंड व्हाट आर द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म? दे आर 5। फर्स्ट इज केमिकल। केमिकल पहले के जमाने में बर्थ के टाइम पे AgNO3 का सिल्वर नाइट्रेट का एक सोल्यूशन आता था जिसको बच्चे की आंखों पे लगा दिया जाता था, दैट वन। सेकेंड इज गोनोकोकल। बैक्टीरियल में स्टेफाइलोकोकस, न्यूनेटल में क्लेमाइडिया ट्रैकोमाटाइस होता है, एंड हर्पीज सिम्प्लेक्स। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन के पीरियड के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म होगा उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। केमिकल 4 to 6 आवर्स में अगर अपीयरेंस है, गोनोकोकल 2 to 4 days, बैक्टीरियल 4 to 5, न्यूनेटल इंक्लूजन वाले में 5 to 14 एंड हर्पीज सिम्प्लेक्स 5 to 7 days। सिम्टम्स जैसा कि बच्चे की आंख दिखाई दे रही है, कैसा है? टेंडर बोगी स्वेलिंग, डिस्चार्ज, येलोइश पस, क्रस्टिंग, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है अगर कॉर्निया इन्वॉल्व हुआ तो? कॉर्नियल अल्सर। So prophylactic is treatment of एंटीनेटली अपन प्रोफाइलेक्सिस दे सकते हैं, तो जेनाइटल इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट। नेटल डिलीवरी अंडर एसेप्टिक कंडीशंस। पोस्टनेटल ये पहले 1% टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट अपन पहले देते थे। ट्रीटमेंट अब क्या है? केमिकल इज ऑलवेज सेल्फ लिमिटिंग। गोनोकोकल यू शुड गो टुवर्ड्स सलाइन लवाज विद पेनिसिलिन ड्रॉप्स विद सिस्टमिक ट्रीटमेंट ऑल्सो। And curative treatment for bacterial broad spectrum antibiotic eye drop or ointment, and neonatal inclusion है then erythromycin और tetracycline group, ठीक है। वायरल क्लियर हुआ? बैक्टीरियल लास्ट क्लास में पढ़ा था। नाउ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो मोस्ट कॉमनली आप लोगों को होता रहता है जो समर के टाइम पे, दैट इज एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। मोस्ट कॉमन इज वायरल। लास्ट बेंचेस, आगे की तरफ ध्यान दो, ठीक है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, एलर्जी कौन सा? IgE होता है, A होता है, कौन सा होता है? IgE मीडिएटेड, ठीक है। सो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस मेनली अपने किस सीजन में आता है? स्प्रिंग एंड समर। स्प्रिंग में जो पॉलेंस होते हैं उनके थ्रू, समर में जो ड्राई एनवायरमेंट है उसके थ्रू। मोस्ट कॉमनली इस टाइम पीरियड में बच्चों में और यंग पॉपुलेशन में एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस बहुत कॉमन है। एलर्जिक अगेन इट्स कंजक्टिवाइटिस, सो इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा। मोस्ट कॉमन इज VKC। व्हाट इज VKC? वर्नल केरेटो कंजक्टिवाइटिस। इट्स रिकरेंट, bilateral and self-limiting, okay? It's a hypersensitive reaction to grass pollens, exogenous allergens, IgE mediated. Predisposing factor again 4 to 20 year. 20 year के बाद अपने आप सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है बॉडी में, then the allergic conditions fades. More in summer. समर में है बट इसको कहते क्या है? स्प्रिंग कटार। तो आंसर गलत नहीं बोलना है, स्प्रिंग में नहीं होता, समर में होता है। Pathology, again because it's an allergic condition, there would be epithelial hyperplasia, infiltration of the endinous cell layer, fibrous layer का proliferation, vascular proliferation and permeability. All the signs of inflammation. इसमें कैसा डिस्चार्ज आएगा? No pus, no crusting, no chemosis. There would be ropey discharge. ropey मतलब एक patient would be saying एक धागा सा निकलता है आँख से, ठीक है। There would be only itching, जैसे कि एलर्जी में होता है itching। अभी आप ये देख रहे हो पैल्पेब्रल कंजक्टिवा पे सैगो ग्रीन लाइक अपीयरेंस हो रहा है। What are these? These are flat topped hard papillae. These are arranged in cobblestone or pavement stone formation, ठीक है। These are giant papillae. तो papillae किसमें फॉर्म हो रहे हैं? एलर्जिक कंडीशन में, ठीक है। वायरल में क्या पढ़ के आए हो अभी? फॉलिकल्स। बल्बर कंजक्टिवाइटिस, दैट वाइट पोर्शन ऑफ द आई, दैट उसकी जो कवरिंग है दैट इज बल्बर कंजक्टिवा।
इसमें dusky red triangular congestion of the bulbar conjunctiva in the palpebral area and gelatinous thickened accumulation of tissue around the limbus. limbus दिखाई दे रहा है, कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन, उसके जंक्शन पे आपको दिखाई दे रहा है gelatinous thickened है, उसको बोलते हैं लिम्बाइटिस. दिस कंडीशन denotes towards allergic condition. ठीक है, एंड इन्हीं को बोलते हैं अपन हॉर्नर-ट्रांटा स्पॉट्स. एंड मिक्स्ड फॉर्म होता है जिनमें कंबाइंड फीचर्स होंगे पैल्पेब्रल के भी बल्बर के भी. कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट, देखो तुम्हें एक व्हाइट डॉट्स दिखाई दे रहे हैं कॉर्निया पे, दीज आर नोन एज सुपरफिशियल पंक्टेड केराटोपैथी. ये दीज कुड कोलेज एंड फॉर्म द शील्ड अल्सर आल्सो. सूडोजेरोंटॉक्सन, नॉर्मली आप अपने पेरेंट्स के देखते हो व्हाइटिश लाइन होती है अराउंड द कॉर्निया, उसको क्या बोलते हैं आर्कस सिनेलिस. उस मेन वर्ड इज जेरोंटॉक्सन, और यही जेरोंटॉक्सिन अगर तुम्हें यंग एज के बच्चे में दिख रहा है दैट इज नोन एज सूडोजेरोंटॉक्सन. एंड सूडोजेरोंटॉक्सन इज ड्यू टू एलर्जिक कंडीशन. इट्स अगेन सेल्फ लिमिटिंग बिकॉज इट इज एन एलर्जिक कंडीशन. बाहर चले जाओ, अटेंडेंस नहीं मिलेगी तुम दोनों को. शांति से बैठो, 15 मिनट की क्लास है, बाद में बात कर लेना. ट्रीटमेंट बाय स्टेरॉइड्स बिकॉज इट्स एन एलर्जी कंडीशन. ठीक है, मेन इज कोल्ड कंप्रेशन. वाई? बिकॉज वेस्कुलर कंजेशन इज देयर. आप कोल्ड कंप्रेशन करोगे, वेसल्स का मोटिव थोड़ा रिड्यूस होगा तो पेशेंट का कंजेशन डिक्रीज होगा. तो एलर्जी कंडीशन में आपका मेन ट्रीटमेंट आप क्या दे सकते हो? कोल्ड कंप्रेशन, देन माइल्ड एंटीहिस्टामिनिक एंड देन स्टेरॉइड्स. देन डिजनरेटिव कंडीशन. डिजनरेटिव कंडीशंस क्रॉनिक कंटिन्यूअस आपका एक्सपोजर हो रहा है किसी भी डस्टी एनवायरनमेंट से या फिर किसी भी एलर्जी कंडीशन से. तो क्रॉनिक कंडीशन में बार बार एक जगह इंजरी हो रही है, दैट कुड कॉज अ डीजनरेशन. तो डीजनरेटिव कंडीशन हमारे राजस्थान में बहुत लोगों को आपको एक मास दिखाई देता होगा जो कि आंखों की मीडियल साइड में होता है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? नाखूना. पेशेंट्स बहुत आते हैं नाखूना हो रहा है, नाखूना हो रहा है. उसका अपना क्या है? टेरिजियम. सो पिंडिकुलर से स्टार्टिंग पॉइंट एक येलोइश पॉइंट दिखाई दे रहा है द बल्बर कंजक्टिवा. इट्स अ ट्रायंगुलर पैच with apex away from the cornea. ठीक है, and this pellicula will transform to pterygium. Pterygium what is? It is triangular fold of conjunctiva enclosing cornea from either side within the interpalpebral fissure. Now what are the parts? Body, neck and head. Body is on the sclera. जैसे कि आप टेरिजियम का पार्ट देख सकते हो, इसका जो पार्ट आपको कॉर्निया के ऊपर दिखाई दे रहा है और कुछ पार्ट आपको स्क्लेरा के ऊपर दिखाई दे. तो स्क्लेरा के ऊपर पार्ट है दैट इज बॉडी ऑफ द कंजक्टिवा. देन नेक जो कि लिम्बस पे होता है, और जो कॉर्निया के ऊपर पहुंच चुका है दैट इज हेड ऑफ द कंजक्टिवा टेरिजियम. प्रोग्रेसिव हो सकता है, रिग्रेसिव हो सकता है. द प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव को कैसे बोलेंगे? अगर द इन्फिल्ट्रेट जो अगर टेरिजियम के हेड से आगे की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं देन इट वुड बी प्रोग्रेसिव. And regressive अगर infiltrate is behind the head of the pterygium. Etiology, when I said multiple time exposure of a chronic condition like exposure to UV rays, sunlight, heat, dust, wind. Pathology, it's a degeneration condition. किसका है? Subconjunctival tissue का. Subconjunctival tissue continuous degeneration leading to proliferation of the vascular granulation tissue that is forming this pterygium. Symptoms mostly asymptomatic. Patient will be complaining of this only cosmetic कि मेरे आँख में कुछ है. Until and unless it encroaches the cornea and causes an astigmatic effect that could lead to decrease in vision. ठीक है? Complication, it could go into cystic degeneration, infection, sometimes neoplasm. It should be differentiated from pseudoterygium. What is pseudoterygium? Bulbar conjunctiva adheres to cornea at the site of burn. जब भी burn होता है तो आपका जो सरफेस होता है वो रैगिड हो जाता है. That ragged surface पे अटैचमेंट डेवलप हो जाता है. तो जो डेवलपमेंट अटैचमेंट बर्न की वजह से
डेवलप हुए कॉर्निया के ऊपर कंजक्टिवा के, दैट इज सूडोटेरिजियम, एंड टेरिजियम इज अ डीजनरेटिव सब कंजक्टिवल टिश्यू फोल्ड. ट्रीटमेंट, सर्जिकल इंसिजन इज द ट्रीटमेंट. मोस्टली इंडिकेशन क्या होगी? प्रॉब्लम कॉस्मेटिक है तो इंडिकेशन भी कॉस्मेटिक. Other conditions like if it has grown up to the pupillary margin and it is obstructing the vision, then it's a therapeutic. Technique, what you have to do, just cut and shave the pterygium, and what we are applying, it's a graft. You can take this graft from the superior conjunctival tissue, or it could be autologous graft, or it could be any other tissue, amniotic membrane. You have to just put these grafts at the area you have excised the pterygium. ठीक है, ये दिखाई दे रहा है टिश्यू. Underneath the tissue, you have to pass the probe and excise the tissue. After excising from the cornea, you have to cut the tissue from pterygium tissue body up to the level from the sclera. ठीक है, this is the excision point. This is an autograft technique. आपने इधर से एक्सरसाइज किया and conjunctival graft you are taking from the superiotemporal region. You are cutting that graft from the superiotemporal region and then transferring this graft towards the cut site, and you could stitch that graft either with sutures or glue. ठीक है, होमोलॉगस भी होता है जिसमें अपन ब्लड का इंजेक्ट करके ब्लड के ऊपर जो ऑटोलॉगस सीरम डेवलप होता है फाइब्रोनस टिश्यू, उससे एडहर कर देते हैं 24 आवर पैचिंग के बाद. There is sclera technique where you are not doing any graft, just cutting. Recurrence, surgical excision with bare sclera, इसमें recurrence की chances होती है. फ्री कंजक्टिवल ग्राफ्ट एक प्रेफर्ड टेक्निक है, रिकरेंस कम ही रहता है. अगर फिर भी रिकरेंस कम कर जाता है, then anti-mitotic drugs like mitomycin and thiotepa, these can be used.